we describe the economic dispatch. So I will give just a review of the what was the economic dispatch, and whatever was told in the laboratory class about the economic dispatch, make it as a part of the theory class also. Economic dispatch पे एक numerical question भी आपको दिया था, and one experiment was performed. I hope you might have performed that experiment too. In that experiment, we told that the operating cost of any power plant is given by such type of curve, and which is represented by such equation: C is equal to A Pg square B Pg plus C. If you want some amount of power Pg, this will be the price to be paid. And then we told if number of generators are connected, then total generation should be equal to the total demand. So generation should be equal to demand. And generators have the limitations that any generator can supply this amount of minimum power, this amount of maximum power, Pg minimum and Pg maximum. It has a limit because we want that this should be the optimally minimum cost should be paid for supplying of this power. For supplying of this power, the minimum cost or minimum price is to be paid. So the Pg1, Pg2, Pg3, they will be different, or you can say whichever will be the cheaper, from that we are going to purchase that particular amount. So then we told, so I'm just giving a review that power CI means the power price of the ith generator. So total power paid is the CPI, means sum of them that C1, C2, C3 is the total power paid. And this is to be minimized. This function is to be minimized, means C is to be minimized with the following constants, following that equality constant. This is to be minimized with this condition that PD should be equal to del PGI. Total demand should be equal to total generation with this condition. So conditions are, this is called the Lagrange multiplier. So this Lagrange function is defined as the total function which is to be minimized plus Lagrange multiplier and this condition. And we told to get this as a minimum, the incremental differentiating of this with respect to PGI should be equal to 0. Then this condition came. That CI should be equal, that this CI by dPGI should be equal, all CI by dPGI means incremental cost. This is called the incremental cost or incremental price of each generator should be equal to same. That's why after putting this condition, we obtained this. This should be same. So putting this value, this CPI here, incremental cost, and this dCi dPGI, by differentiating the double order equation, this we get, and this would be equal. From here we can obtain the PGI, and finally we obtain this formula. This finding this incremental cost, incremental price, this came out with this equation, and then we have written a computer program to write what is the cumulative price, means lambda versus PGI. If you increase the P, what will be the incremental price? Then we plot a graph for that. I hope you might, it is just revision and you might understand it. Then if there is economic, we want this demand should be equal to, this is the condition, demand should be equal to the generation. But in fact, generation is not only to supply the demand, but it is to supply the losses also. So if we consider your losses of the transmission line, then the formula becomes, this is just, you might have studied in the BTech classes, and since the time is less, I hope you can do it. You can read it at your own level. So this is the condition. Demand and total generation is not only the demand, but it is demand plus losses. Okay. So it means now Lagrange function is, this is to be minimized subject to the condition demand plus losses should be equal to be supplied by the generators. Earlier this PL was 0, losses were equal to 0. So now differentiating this Lagrange function with respect to PGI, we obtain this condition. Means earlier आपने देखा क्या, dPGI by dCi by dPGI incremental price was equal to same, but now it is, this is lambda is equal to Li.
dCi by dPgi. Li is the penalty factor, which is defined as a 1 by dPL by dPgi. Means this Li is there, and at this stage we can say only PGI incremental cost equal to 0 is not required, but dCi by dPgi here Li times dCi by dPgi should be equal, and this indicates the generator which is away from the load. The generator which is away from the load, that will have the more losses. So the when losses are there, so this penalty will be more. That's why penalty will be yes. With this condition, anyway, with this condition, we obtained the PG. Earlier PGI was something else. Now PGI came out to be this, and lambda came out from this equation. But our intention is something else. Now we are going. Our purpose here was different to describe this, because we are now going to discuss the reactive power flow. Here, just you see, this we have just described. This is just described. Incremental cost should be equal to 0. Now the reactive power. Here you have seen the active power. Here, if you remember, this is a price curve of the this was the price curve for the active power. If the power generation is more, price is going to increase like this. Means if any generator is supplying this power, if this generator is supplying this power, it will be paid this amount of cost, total price. If this is the P, then this is the price. This is the second order equation, quadratic equation. But in case of a reactive power flow, you see the power flow equation will be like this. That was the second order equation, quadratic equation. This is like this. Here this is the equation. Now I will describe what is this equation mean. You see, before this is the graph. For the PG, for the power versus price was only the quadratic equation. Here it is a reactive power. Reactive power on this side, and this is the price on this side. This is the graph like this here, and this graph shows about the reactive power. And how we will understand this here. Now you see what is the role of the active power. Before describing this graph, I will describe what is the role of active power, what is the role of the reactive power. Active power is to supply the active load, and load in industries or otherwise also in domestic as well as other places, load is not only the active, load is the reactive also. If reactive load supply is not demanded, or reactive load demanded is not equal to the supplied reactive power supplied, reactive power demand, because of the reactive load there is a reactive power demand, and reactive demand is from the, say, induction motors, tube lights, etc. There is a reactive power demand, and if the reactive power demand is not met, or reactive power is not supplied as demanded, then the voltage of the system goes down. So voltage, to maintain the constant voltage, we have to supply the reactive power as demanded. If the reactive power demand or reactive power supplied is equal to the reactive power demand, then voltage will be 1 per unit.
or it is designed to have to operate at 1 per unit. If reactive power demand is higher than the supplied, then voltage will go down. Similarly, if reactive power demand is less than the reactive power supplied, then voltage will go up. But voltage is not allowed to go up and down. It has to be maintained at all buses within all the transmission buses within the plus minus 5% per unit. So that's why voltage has to be maintained constant. So to maintain the constant voltage, we have to supply that amount of reactive power. Each generator, now each generating station, whenever it will generate, it will supply some reactive power. So this area, you see, it is a mandatory area. Reactive power generator has to supply the reactive power in this range. This is the 0 to base length, 0 to base. This is the mandatory reactive power. ये हर एक जनरेटर को इतना रिएक्टिव पावर सप्लाई करना ही पड़ेगा. सो दिस देयर इज नो प्राइस फॉर दिस इतना, क्योंकि जब वो एक्टिव पावर जनरेट करता है तो रिएक्टिव पावर भी जनरेट हो रहा है, तो उस समय इतना ये बेस है, इस समय रिएक्टिव पावर के लिए कोई प्राइस पेमेंट नहीं है. इट इज मैंडेटरी आइदर ई सप्लाई जीरो रिएक्टिव पावर और क्यू बेस रिएक्टिव पावर. इसमें ये वो अपने आपको मेंटेन करने के लिए इतना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है. देयर इज नो प्राइस फॉर दैट. नाउ if the reactive power in this range, means if it is more than the base current, base reactive power, then it has to be, it will be paid, generator will be paid, and reactive power is demanded. If the reactive power demand is increases, why the demand will increase? See, load is such that हमारा लोड ऐसा है कि रिएक्टिव पावर डिमांड हो रही है, तो टू सप्लाई दैट लोड, to counterbalance that load, generator has to be supply, generator will supply reactive power. तो reactive power वो जब इस रेंज में सप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली they will be paid. And this M2 is the slope. हर एक जनरेटर अपना अपना स्लोप देगा कि हमारा इतना रिएक्टिव पावर लेंगे तो हम इतना प्राइस लेंगे, इतना रिएक्टिव पावर लेंगे तो इतना प्राइस. हर एक जनरेटर का अपना ये स्लोप होगा. सो अकॉर्डिंगली इट मींस इट इज ए बिड ऑफ द जनरेटर कि हमसे इतना रिएक्टिव पावर लोगे तो हम इतना प्राइस लेंगे, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू दिस. सो इट इज ए reactive power supplied. Similarly, it is under excitation. Reactive power, यहाँ reactive power supply का मतलब क्या है? Generator will work as a, it will, if the load is lagging, it will supply the reactive power. If load is leading, अगर आपका by the way ये होता नहीं है, लेकिन by the way it may happen, load is leading, तो इसे under excitation work करना पड़ेगा, तो reactive power absorb करना पड़ेगा, और reactive power leading reactive power supply करना पड़ेगा. So it means this is the price. Then generator can say, अगर आप मुझसे लीडिंग लोड के लिए अंडर एक्साइटेशन पे काम कराएंगे तो अभी मैं इतना चार्ज करूंगा. सो दिस इज द प्राइस ऑफ द जनरेटर. नाउ दिस इज ए इफ प्राइस इज, इफ रिएक्टिव पावर डिमांड इज मोर देन दिस then even if you see this is the bid price, it is the bid price of the generator, and generator will be paid for this. This is higher, means for less reactive power. You see, for less, यहाँ आप देखिए 1 per unit चेंज रिएक्टिव पावर में से 10% चेंज करने के लिए रिएक्टिव आपका डिमांड 10% प्राइस इंक्रीज करेगा. बट हियर on increasing the 10% reactive power, price will be more than that because it is a parabolic type, not the straight line. So here the price paid is more. Price paid to the generators are more than the price here. And why it is more? इसका रीजन क्या है? It is there because of the, देखिए रिएक्टिव पावर हर एक जनरेटर की अपनी कैपेबिलिटी है. जनरेटर कैन नॉट सप्लाई एनी रिएक्टिव पावर. हर एक जनरेटर का अपना कैपेबिलिटी है. जैसे आपका एक्टिव पावर का मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होता है, ऐसे ही रिएक्टिव पावर का भी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होता है. हर एक जनरेटर इतना रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है, इतना रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं कर सकता. एंड इफ बिकॉज ऑफ द सिस्टम कंस्टेंट वी वांट, हमारा सिस्टम ऑपरेटर वांट्स दैट आप बियॉन्ड योर लिमिट, कोई भी जनरेटर है, सपोज उसकी लिमिट है 100 MVAR रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है 100 MVAR, और अब बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस सच कंडीशन हैज अराइजेस दैट दिस जनरेटर विल बी आस्क्ड टू सप्लाई मोर देन 100. फिर वो कैसे सप्लाई करेगा?
अगर किसी जनरेटर का रिएक्टिव पावर की कैपेसिटी है 100 और उससे ये कहते हैं कि आप 100 से ज्यादा रिएक्टिव पावर सप्लाई करें, देन हाउ इट विल सप्लाई? कैन यू सजेस्ट सम आइडिया इन दिस? आप सजेस्ट कर सकते हैं? आर यू लिसनिंग मी संगीता? हेलो, हाँ संगीता। सर कौन बोल रहा है? मितेश? यस सर। हाँ संगीता, आर यू लिसनिंग मी? नॉट लिसनिंग? सर उनके सेशनल है तो वो रास्ते में है सर, हम सब मतलब। अच्छा चलो यस सर। अच्छा आप मितेश, यस सर। आप ही बताइए, सपोज करिए आपसे कहा रास्ते में आप आ रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है आप अपने साथ साथ हमारा 100 kg का एक बैग और साथ में लेकर आए तो आपको इतना प्राइस मिलेगा। और सपोज आप 100 kg की जगह आपके पास रिक्वायरमेंट, आपके पास जो जगह है वो 80 kg है ओनली, ठीक है। 80 kg के लिए आपको 80 रुपीज दे रहे हैं और अब आपको प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं आपको 80 नहीं, आपको 100 लाना होगा, क्योंकि 100 के बिना आपको बस पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे? यस बताइए मितेश, बताइए। व्हाट विल यू डू? सर 20 के लिए और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नहीं, पे तो करना पड़ेगा, लेकिन कैपेसिटी तो आपकी 100 ही थी। कैपेसिटी आपकी नहीं, कैपेसिटी आपसे कहा जाए 100 की जगह ज्यादा ले जाए, आपकी कैपेसिटी आप हमारा 100 ला सकते थे या 80 ला सकते थे। हमने कहा 80 नहीं, आपको 100 लाना है अब, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है 100 के बिना आपको बस में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तब आप क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? आर यू लिसनिंग मी? यस सर, यस सर। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, एनीवन एल्स हु कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन? जगबीर, आप बता सकते हो इसका क्या करेंगे आप? व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसमें शायद कैपेसिटर लगाते हैं ना सर, रिएक्टिव पावर सप्लाई करने के लिए। नहीं आप वो बताइए, जैसे आप कह रहे हैं भाई मेरे पास 80 kg का रिक्वायरमेंट जगह है, हम आपकी सर 80 kg वेट ले आऊंगा और हम आप रेट ले रहे हैं 80 kg के 80 रुपीज। अब मैंने कहा 80 नहीं चलेगा, 100 लेके आना है, 100 kg का वेट लेकर आना है और आपकी कैपेसिटी, आपके पास जगह 80 kg की थी, तब आप क्या करेंगे? हेल्प ले लेंगे ना सर दूसरे से। नहीं दूसरे की हेल्प कैसे ले लेंगे? सारे हर एक के साथ ये प्रॉब्लम, जितने जनरेटर्स हैं सबकी लिमिट आई हुई है। सॉल्यूशन बताओ। सभी पैसेंजर की यही अगर है तो क्या करोगे? मना कर देंगे सर। मना कर देंगे तो बस ही नहीं चलेगी। जैसा अगर रिएक्टिव पावर आप नहीं सप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज 1 पर यूनिट नहीं रह जाएगा। वोल्टेज 1 पर यूनिट नहीं होगा तो सिस्टम डाउन हो जाएगा, पूरा ग्रिड डाउन करने की परमिशन नहीं है। बस आप पैसेंजर हैं, आपको काम नहीं है बस को रोकें, फिर क्या करेंगे? यस एंड कार्तिक, आप बता सकते हैं? दीक्षा, डू यू हैव सम आइडिया? हाँ दीक्षा। यस सर। हाँ, डू हैव सम आइडिया? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? नो? संतराम, मोहित। यस सर। हाँ आप बता सकते हो? सर मैं वो कैपेसिटर वाला ही बता रहा था सर, मैं तो नहीं वो सिस्टम नहीं, में तो कैपेसिटर लगाते हैं ना। नहीं वो आपका काम नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आपको तो जितना दिया है वो तो सिस्टम, जो बस ड्राइवर है, बस ड्राइवर देखेगा कि हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या करना है। फिलहाल तो वो पैसेंजर से कह रहा है।
पैसेंजर को ऑर्डर दे रहा है तो भाई आपको 80 की जगह आप 100 kg लेके जाओ, पैसेंजर आप क्या रिप्लाई दोगे? सर जो भारत देखे क्या समझ में नहीं आया? सर जो एक्स्ट्रा जगह है वहाँ पे, एक्स्ट्रा जगह जो होती है वहाँ पे दर्द देंगे सर। नहीं सुनो, इसका ऐसा है ना, आपको अपनी तरफ से जवाब देना है। आपको एज ए जनरेटर या एज ए पैसेंजर आपको क्या है, आपसे कहा गया 80 kg की जगह आपके पास 80 की स्पेस था, आप 100 kg ले जाएं, तब आप कहेंगे हम 80 की जगह 100 आप कैसे ले जा सकते हैं? अपना वेट जो आप अपना लगेज लेकर आ रहे हो वो कम करें और हमारा वाला 80 की जगह 100 ले जाएं। फिर आप क्या कहेंगे? सर मैं अपना 20 kg वेट निकालने को तैयार हूं, अगर आप मुझे 1 रुपए पर kg की जगह 2 रुपए पर kg दें। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अगर आप अपना वेट, तो उससे क्या होगा, क्योंकि आप अपना 100 लेकर चल रहे थे, आपको अपना कम करना पड़ेगा। अपना कम करना पड़ेगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ लॉस होगा, जो आपका इंपोर्टेंट काम है वो रुकेगा। तो आप कहेंगे 1 की जगह अगर आप 2 रुपए देंगे तो हम सर अपना 20 कम कर लेंगे और आपका 100 ले जाएंगे। दिस मे बी द आंसर और नॉट? हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, इसीलिए ये जो है, अब जनरेटर क्या कहेंगे, मैं अपना एक्टिव लोड कम कर लूंगा, एक्टिव पावर जो सप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि एक्टिव पावर वो सप्लाई कर रहा था, एक्टिव माने आपका अपना लोड हो गया, एक्टिव पावर सप्लाई उसका उसे पैसे मिल रहे हैं किस प्राइस से? C इक्वल टू A PGI प्लस B PG प्लस C के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं अपना एक्टिव पावर कम कर लूंगा जिससे मेरा कुछ लॉस होगा, लेकिन अगर आप मुझे नॉर्मल से ज्यादा रेट रिएक्टिव पावर के लिए दें तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा रेट उसे मिलेगा। ओके, ये नॉर्मल से ज्यादा रेट मिलेगा जो, क्योंकि उसने अपना कैपेबिलिटी जो अपनी पावर जनरेशन थी वो कम किया, इसलिए उसे यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा। सो दिस देयर इज ए इक्वेशन फॉर द y इक्वल टू mx। इसकी इक्वेशन आप सिंपल लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन पैराबोलिक फॉर्म में लिखेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इसकी इक्वेशन सिंपल लिखेंगे। इसके बेसिस पे हम ये इक्वेशन बनाएंगे, a0 फिक्स वैल्यू प्लस m1 y इक्वल टू mx, ऐसा m q dq मिनिमम से लेके 0 तक, फिर q बेस से लेके qga तक, qga से लेके यहां तक। तो ये हमारा q, तो दीज आर द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, अप्रोक्सीमेट और इफेक्टिव पावर फ्लो इक्वेशन, ओके दैट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अब आपको, जैसे वहां क्या था, जो हमारा प्राइस था, बिड प्राइस था, उसको मिनिमाइज किया था, ऐसे ये एक जनरेटर का बिड प्राइस है, ये बिड प्राइस एक जनरेटर का है, EPFI इफेक्टिव पावर फ्लो प्राइस। और ऐसे ही सम ऑफ ऑल, इन सब का सम करेंगे, मतलब सभी जनरेटर का इसको सम कर दें और फिर उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो हमारा इंडिविजुअल क्या निकलेगा, कितना रिएक्टिव पावर कौन सा जनरेटर देगा, जिसका जिस रीजन में पड़ रहा होगा, जिसका जिस रीजन में, सपोज एक जनरेटर का इस रीजन में हम सप्लाई ले रहे हैं तो उसे ये रेट मिलेगा, दूसरे जनरेटर से इतना रिएक्टिव पावर ले रहे हैं तो उसको ये वाला रेट मिलेगा। ओके, तो इस तरह उसका रेट मिलेगा। नाउ क्या गया, और ये मैंने इसको टेक्निकली अगर समझाएंगे कि why PG is required to be reduced to supply the more reactive power, वो टेक्निकली आप समझेंगे। तो ये हमने नीचे आपका डिटेल दिया हुआ है, एंड यू कैन स्टडी, टाइम इज लेस, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब दैट थिंग इन डिटेल नाउ। अदर देन दिस देखिए, एक तो होता है, जैसे उसमें क्या था, इक्वलिटी कंस्टेंट, टोटल जनरेशन शुड बी इक्वल टू डिमांड, उसमें था ना एक्टिव पावर के केस में। सिमिलरली जब लॉसेस था तो टोटल जनरेशन वाज इक्वल टू डिमांड प्लस लॉसेस, वो तो था इक्वलिटी कंस्टेंट, हमें वो कंडीशन है जो फुलफिल करना ही है। अदर एंड देयर वाज सम लिमिटेशंस, और उसकी लिमिट भी थी कि PGI शुड बी विद इन द रेंज, हर एक का PGI मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में होगा। इसमें दीज आर द अनइक्वलिटी कंस्टेंट, इक्वलिटी कंस्टेंट होते हैं और इनइक्वलिटी कंस्टेंट होते हैं। इनइक्वलिटी कंस्टेंट मींस
देखिए हर एक का फिर भी देयर इज ए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, हर एक जनरेटर का मिनिमम और मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो अगर सारा का सारा अपना लोड निकाल भी दे तो अभी उसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। सो दिस इज द मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ अच्छा। सो देखिए ये तो इक्वलिटी कंस्टेंट हो गया। इक्वलिटी मींस टोटल जनरेशन ऑफ रिएक्टिव पावर शुड बी इक्वल टू टोटल लोड एंड टोटल लॉसेस ऑफ द रिएक्टिव पावर, ये इक्वलिटी कंस्टेंट हो गया। और कंडीशंस क्या हो गई कि भाई वोल्टेज शुड बी, दिस इज आल्सो टू बी ऑप्टिमाइज, चेंज इन वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज और एक्चुअल वोल्टेज का डिफरेंस, और एट ऑल द बसेस स्क्वायर ऑफ दैट मींस एक कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है, सो स्क्वायर ऑफ दैट शुड बी मिनिमम। तो ये दोनों फंक्शन हमारे मिनिमम होना चाहिए। नाउ तो हम ओवरऑल प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने के लिए लैग्रांज फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ए लैग्रांज फंक्शन। हाउ विल डिफाइन? ये तो एक्टिव पावर का था, ये आपको ध्यान है, डू यू रिमेंबर दिस? ये एक्टिव पावर में इसको मिनिमाइज करना है, ए पीजीआई प्लस में ये एक्टिव पावर पे जितना प्राइस पे करना पड़ेगा ये हो गया। सम ऑफ देम मींस सभी आई इक्वल टू 1 to n जितने जनरेटर हैं उनका एक्टिव पावर का प्राइस दिस इज टू बी मिनिमाइज। ये रिएक्टिव पावर का प्राइस है, इट इज आल्सो टू बी मिनिमाइज हर एक का। I is the first generator, similarly I to n, there are n generators, so इसका रिएक्टिव पावर प्राइस हो गया। प्लस पॉल्यूशन, कोई भी जनरेटर को इफ इट इज क्रिएटिंग पॉल्यूशन वी हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। देखिए ये कैसे निकालेंगे? इट इज ए फंक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ द गैसेस, क्वांटिटी ऑफ द गैसेस एंड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। क्वांटिटी ऑफ गैसेस मींस कौन सी गैसेस निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और कितने अमाउंट में निकल रहा है, SO2 निकल रहा है कितने अमाउंट में। जब हम कोल बर्निंग करते हैं तो उसमें पॉल्यूशन भी निकलता है, और एंड पॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ द कोल क्या है, कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू पे द प्राइस, उसको भी पे प्राइस जो करना पड़ेगा वो मिनिमम होना चाहिए। और ये किस पे डिपेंड करेगा? देखिए हाउ वी विल फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर दैट, इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए कार्बन रेटिंग के नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि भाई इतना कार्बन रेटिंग, अगर कार्बन रेटिंग इतना होगा तो इतना प्राइस करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एंड मींस कार्बन इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस वी कैन सेल एंड परचेज ऑफ द कार्बन रेटिंग। आप इकोनॉमिक्स के पे जाएंगे, नेट पे जाकर सर्च करेंगे हाउ टू पे, व्हाट इज द प्राइस पेमेंट और व्हाट इज द परचेजिंग एंड सेल ऑफ कार्बन रेटिंग, हाउ इट इज डन, यू कैन फाइंड द इक्वेशन कि कितना कार्बन रेटिंग हुआ उसको कैसे हमने प्राइस में कन्वर्ट करना। सो दीज आर द थ्री, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड द पॉल्यूशन। इसको मिनिमाइज करना है, इस पेमेंट को मिनिमाइज करना है सब्जेक्टेड टू द वेरियस कंडीशंस, इक्वलिटी कंडीशंस। इक्वलिटी कंडीशंस क्या है? ये देखिए टोटल डिमांड एंड लॉसेस शुड बी इक्वल टू टोटल जनरेशन। एक्टिव पावर उतनी जनरेट होनी चाहिए जितना डिमांड एंड लॉसेस है। सिमिलरली रिएक्टिव पावर उतनी जनरेट होनी चाहिए जितना रिएक्टिव पावर का डिमांड एंड लॉसेस है। तो इट इज ए लैग्रांज मल्टीप्लायर, इट इज अनदर लैग्रांज मल्टीप्लायर, इट इज अनदर लैग्रांज मल्टीप्लायर दैट voltage of all the buses, difference between voltage and their standard voltage 1 per unit, और उसके बीच में जितना डिफरेंस है वो मिनिमाइज होना चाहिए। तो दिस इज लैग्रांज फंक्शन। इस लैग्रांज फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू ऑल वेरिएबल्स हियर। यहाँ जितने वेरिएबल्स हैं उसके रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड वी विल फाइंड द ऑप्टिमल केस सब्जेक्टेड टू द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। ये देखिए आप इसमें इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, ये देखिए यहाँ, दिस इज द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। एक जनरेटर का पीजीआई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में होगा, क्यूजीआई उसका मिनिमम मैक्सिमम लिमिट में होगा, वोल्टेज मिनिमम मैक्सिमम में होगा, टेप चेंजिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हर एक की कैपेसिटी है मिनिमम मैक्सिमम लिमिट में होगा, रिएक्टिव पावर फ्लोइंग इनटू द ट्रांसमिशन लाइन वो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट में होना चाहिए, नॉट रिएक्टिव। टोटल एमबीए क्योंकि हर एक ट्रांसमिशन लाइन पे कितनी पावर फ्लो करेगी वो उसकी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा नहीं फ्लो करा सकते, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग
इनइक्वलिटी कंस्टेंट, इसको ध्यान में, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, मींस जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते पे प्रोग्राम के टाइम पे इन कंडीशंस का ध्यान रखेंगे, इनइक्वलिटी कंस्टेंट्स का। ओके, और अबाउट द डिटेल ऑफ द रिएक्टिव पावर, दिस थ्योरी इज अवेलेबल, आई हैव अपलोडेड दिस ऑन योर गूगल क्लासरूम, यू कैन गो थ्रू, देयर इज नो टाइम टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन डिटेल। आप अपने लेवल पे बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, जो कोई भी टॉपिक छूट गया हो, अगर I tried my best. I try my best to cover each and everything, but even if something is left, you should go through at your own